Welcome back. We are still learning about international trade and comparative cost advantage theory, right? So let's get it to the theory. Cause आता तुम्ही मला सांगणार आहात की इंटरनॅशनल ट्रेड थिअरी मध्ये जेव्हा आपण कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट ॲडव्हान्टेज थिअरी बघितली तेव्हा तोपर्यंत आपण काय बघितलंय. ओके, सो आता तुम्ही मला सांगायचंय. सांगा बरं. Concept, comparative theory. ओके, सो ज्यांना ज्यांना आधी अटेंडन्स मिळाला नाहीये किंवा अटेंडन्स शीट मिळाली नाहीये, जस्ट अ मिनिट. ओके, आणि मग तुम्ही नंतर सांगा. त्यांना आत्ताच्या लेक्चरला जेव्हा मी अटेंडन्स शीटची लिंक परत टाकेन तेव्हा तुम्ही वापरू शकता आणि तेव्हा तुम्ही परत अटेंडन्स लावू शकता. ओके, हां, सॉरी. व्हॉट इज इंटरनॅशनल कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट ॲडव्हान्टेज थिअरी? कुणी दिली होती, काय सांगितलं होतं, सांगा बरं मला. कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट थेअरी ही डेव्हिड रिकार्डोने पहिल्यांदा इंट्रोड्यूस केली होती आणि त्यांचं जे मॉडेल होतं ते 2x2 मॉडेल आहे. आणि काय सांगितलं होतं थिअरीमध्ये? लाईक व्हॉट वॉज द स्पेशल केस ऑफ थिअरी? काय सांगितलं त्याने? मग अशी आपण बघितलं काहीतरी. तर Ability to produce. ओके, एक सेकंड. फिजा, आप पहले बोलो और उसके बाद निशिकांत बोलना. ओके, बोलो फिजा. Comparative theory is ability to produce goods at lower price. Very good. एकदम lower cost we can say, right? Very good. That is a Yeah. comparative cost advantage. Very good. निशिकांत? हा, म्हणजे आता समजा 2 कंट्रीज असतील आणि त्या सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करतायत, तर त्यातलं 2 प्रोडक्ट आहेत समजा, तर त्यातलं कमी कॉस्ट असलेलं प्रोडक्ट कोणत्या कंट्रीत होऊ शकतं जास्तीत जास्त? म्हणजे समजा एखादा आता कुठलाही खाद्यपदार्थ असेल आणि त्या 2 पण कंट्रीज सेम प्रोड्यूस करत असतील, तर ते कमी कॉस्ट ज्याला पडत असेल त्याने ते जास्त प्रमाणात प्रोड्यूस करून त्याचा फायदा घेतला. Very good, very good. That's a very nice summarization. Let me just say it in English, modun todun English at least. Whenever there are two countries producing two different commodities like Britain and Portugal, we know that Portugal has a cost advantage in producing wine as compared to production of cloth. जब हम दो commodities की बात कर रहे हैं, there are two commodities, wine and cloth. Portugal is able to make both commodities, wine and cloth. But if we compare the cost advantage, Portugal has clear cost advantage in producing wine as compared to cloth, and that's why Portugal should stick with producing and exporting wine, while Britain should stick with producing and exporting cloth, because both the countries have cost advantage in making those particular commodities. So जो भी country को particularly एक commodity बनाने में comparatively cost advantage है, मतलब कम से कम प्राइस में, कम से कम कॉस्ट में वो कमोडिटी बन रही है, तो उसको उसी कमोडिटी पे फोकस करना चाहिए और वही कमोडिटी का ट्रेड करना चाहिए. That's what David Ricardo and John Stuart Mill and all those other people were saying through this theory. We have seen the assumptions and we are moving forward to the next patch. Okay, just yep. So this is again time for one video and I'm going to show it to you. Just a minute. So we are going to see one new concept. Just a minute. Okay. So now we are going to see, we have seen the concept, that is comparative cost advantage, right? And now we are going to see one more concept, that is absolute cost advantage. और ये दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है वो हम थ्रू दिस वीडियो देखने वाले हैं. जस्ट रीड फर्स्ट. ओके, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? Yes. Very good. So
Aishwarya, can you please read whatever the things that are given, like absolute versus comparative cost advantage and overview? Please read it out for us. Aishwarya, are you able to hear me? Or are you? येस मॅडम. हा, प्लीज परत सांगा क्वेश्चन. सांगते. ऍब्सोल्यूट आणि कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट ऍडव्हान्टेज आणि ओव्हरव्ह्यू नावाची स्क्रीन समोर दिसते का मोबाईल वरती? हो हो हो. करेक्ट. कॅन यू प्लीज रीड इट आउट? तू ते वाचू शकतो yes. का तो पॅरेग्राफ? हो हो. लेट्स स्टार्ट. Absolute advantage and comparative advantage are two important concepts in economics and international trade. They largely influence how and why nations and business devote resources to the production of particular goods. व्हेरी In गुड. जस्ट अ मिनिट. isolation, ओके, एक सेकंड. सो ह्या दोन कंसेप्ट आहेत. मगाशी म्हटलं असं, मगाचपर्यंत आपण हे बघत होतो, पहले हम यही देख रहे थे कि कंपैरेटिव एडवांटेज के हिसाब से हमारा ट्रेड होगा. लेकिन अब जो हम ये एक नई कंसेप्ट देखने जा रहे हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज, ये दोनों भी कंसेप्ट है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एक कंट्री, एक बिजनेस अपना पूरे के पूरे रिसोर्सेस डिवोट कर लेते हैं टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर गुड. ओके, yes, read it aloud. Next paragraph. in isolation, absolute advantage describes a scenario in which one entity can manufacture a product at a higher quality and a faster rate for a greater profit than another competing business or country can accomplish. करेक्ट. सो जर असा विचार केला तर असं म्हटलं जातं की जेव्हा तुम्ही एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बद्दल विचार करताय, जब भी आप एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के बारे में, ये सिनारियो के बारे में देख रहे हो, तो उसमें वन एंटिटी या फिर वन कंपनी या फिर वन नेशन एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकता है क्योंकि इसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है. एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है पूरा का पूरा एडवांटेज. ड्यू टू दिस पूरे के पूरे एडवांटेज ये कंपनी या फिर ये नेशन हायर क्वालिटी का प्रोड्यूस बनाएगा, हायर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएगा और फास्टर रेट ऑफ मतलब ये बनाने का टाइम भी कम कंज्यूम होगा और प्रॉफिट भी ग्रेटर होगा देन कंपेयरिंग अदर कमोडिटीज और अदर बिजनेस. ओके, लेट्स रीड इट आउट. नेक्स्ट पैराग्राफ. Comparative advantage differs in that it takes into consideration the opportunity cost involved when choosing to manufacture multiple types of goods with limited resources. व्हेरी गुड. सो म्हणूनच आपण असं म्हणू शकतो की कंपैरेटिव कॉस्ट, कंपैरेटिव एडवांटेज है, ये डिफर क्यों कर रहा है ये कंसेप्ट से, क्योंकि ये जो नया वाला कंसेप्ट है एब्सोल्यूट कॉस्ट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम की जो कंसेप्ट है इसको भी कंसिडर करता है. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? डू यू रिमेम्बर व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आपको पहले सेमिस्टर में हुआ था FY में, और उसके बाद बहुत बार ये वर्ड आया है. डू यू रिमेम्बर व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है एक चीज खरीदने के लिए या फिर एक चीज का, एक सर्विस का कंजम्पशन करने के लिए आपने दूसरी चीज अगर सैक्रिफाइस कर दी. सिंपली सेइंग, आपको यहाँ पर लेक्चर में आने के लिए, यहाँ पर लेक्चर में ध्यान देने के लिए, अभी के लिए अगर आपका फेसबुक का टाइम, इंस्टा का टाइम, यूट्यूब का टाइम या फिर कुछ मूवी का टाइम, सोने का टाइम अगर आपने सैक्रिफाइस कर दिया है, तो इसका मतलब ये जो सैक्रिफाइस किया हुआ आपने टाइम है, इसको अगर हम मॉनिटरी कंसेप्ट में कन्वर्ट करें, पैसों के कंसेप्ट में कन्वर्ट करें, देन दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इट इज द कॉस्ट ऑफ दोज कमोडिटीज that you have foregone or sacrificed for the chosen commodities consumption. आपने जो चूज किया है कमोडिटी, उसके कंजम्पशन के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए जब आप दूसरे कुछ कमोडिटीज का सैक्रिफाइस कर देते हो, तो ये सैक्रिफाइस की मॉनिटरी कॉस्ट जो होती है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है. तो टेल मी वन एग्जाम्पल. आप मुझे एग्जाम्पल बताइए ऐसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. मैं जैसे आपको एक बोल सकती हूँ कि अगर मुझे हाँ,
अगर मुझे कॉलेज में मीटिंग है तो वो मीटिंग को जाने के लिए मैंने मेरे घर में बैठकर अच्छे से सोने का या फिर अच्छे से मैं कुछ सीरीज देख सकती थी, मैं कुछ मूवी देख सकती थी, या फिर सिंपली सेइंग मैं सो सकती थी। तो ये चीजें मैंने ना की और मैं कॉलेज में मीटिंग के लिए चली गई। तो इसका मतलब मीटिंग को जाने के लिए मैंने अपने सीरीज छोड़ दिए। तो अगर मैं सीरीज को मॉनिटरी कॉस्ट में कन्वर्ट कर दूं, उसका मॉनिटरी कॉस्ट निकाल दूं, तो वो होगा मेरा अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट. तर तुम्ही सांगा मला असं तुम्हाला कुठला एक्झाम्पल माहितीये का? मुझे बताओ आप ऐसा कुछ एग्जाम्पल आपकी रियल लाइफ में से. रुदेश, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू शेयर? डोंट मेक मी. जर का एखादं नवीन प्रॉडक्ट बाजारात आणण्यासाठी मला आधीचे जी प्रॉडक्ट्स आहेत ती जर का रिकॉल करावी लागत असली तर त्याच्यासाठी होणारे एक्सपेन्सेस हे अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट होईल. Very good, very good. Really nice example. So what we can modified that, एक प्रोडक्ट को अगर आप मार्केट में ला रहे हो तो ये प्रोडक्ट मार्केट में लाने से पहले अगर ये प्रोडक्ट आपके पहले कुछ प्रोडक्ट से अपोज में जा रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो अगर आपने पहले प्रोडक्ट कॉल ऑफ कर दिए मार्केट से, आपने उनको वापस से बुलाया, पहले प्रोडक्ट का कुछ अगर थोड़ा सेल घटा दिया, अवेलेबिलिटी घटा दी, तो ये जो कॉस्ट है सेल कम करने की, वो कॉस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी. डेफिनेटली. एनी अदर who wants to share example of opportunity cost? Okay. So opportunity cost बद्दल मी इतकं का बोलतीये, तर हमने जब कंपैरेटिव कॉस्ट के बारे में देखा, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के, तो हमने ये कंसेप्ट जो थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, वो ध्यान में नहीं ली थी. इसका इंपॉर्टेंस कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में को पढ़ते हुए ध्यान में नहीं लिया था. लेकिन ये हमें ध्यान में लेना पड़ता है जब हम एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के बारे में बात कर रहे हो. सो लेट्स सी दिस वीडियो एंड वी कैन लर्न अबाउट इट लेटर. ओके. What is the difference between comparative advantage and absolute advantage? When a nation can make a product at a higher quality and faster rate than another, it has an absolute advantage. Comparative advantage is based on opportunity cost, which is the benefit one forfeits by choosing an alternative option. If one nation has a lower opportunity cost than another to produce a good, it has a comparative advantage. सो असा विचार करा की आपल्याकडे आंबे एक्सपोर्ट करण्यासाठी, मैंगोज को एक्सपोर्ट करने के लिए हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर लोअर है, इसका मतलब है कि हम आम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर जो अदर मे बी पल्सेस मतलब उसळीसाठी जे आपण वापरतो ते सगळं, तूर, मूग, मटकी एंड ऑल दोज थिंग्स. तो आइदर वे हम पल्सेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या आम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन जैसे कि हमने देखा, हमारे पास आम अच्छे से अच्छे मिल रहे हैं और ये आम को मार्केट में कीमत भी ज्यादा मिल रही है. दैट मीन्स हम एक्चुअली हमारे पास हमने आम भी बेचे तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पल्सेस बेचने का बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू आम बेचने का. तो आम से हमें ज्यादा फायदा होगा, पल्सेस से हमें कम फायदा होगा, और इसकी वजह से हमें आम बेचने चाहिए. सो दैट इज अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मतलब पल्सेस बेचने की, तूर, मूग, मटकी विकण्याची जी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट असेल किंवा ती जी कॉस्ट असेल ती कमी आहे ऍज कम्पेअर्ड टू आंबे विकण्याची, आणि म्हणून वी शुड ऑप्ट फॉर सेलिंग आर्म्स ऍज कम्पेअर्ड टू पल्सेस. If one nation has lower opportunity cost than the another to produce a good, so आंबे विकण्याची आपल्याकडे जर कमी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट आहे ऍज कम्पेअर्ड टू पल्सेस विकण्याची, वी शुड ऑप्ट फॉर आम. ओके. Let's say that France and Italy have enough resources to make wine or cheese, but not both. France can make 20 units of wine or 10 units of cheese. Its opportunity cost of each unit of wine is half a unit of cheese, or 10 units of cheese divided by 20 units of wine. Its opportunity cost of cheese is 2 units of wine, or 20 divided by 10. Italy can make 30 units of wine and 22 units of cheese, giving it an absolute advantage for both.
Its opportunity cost for cheese is 1.36 units of wine, and its opportunity cost of wine is 0.73 units of cheese. France has a comparative advantage for producing wine. Italy has the comparative advantage with cheese. सो तुमच्या लक्षात येत आहे ही कन्सेप्ट, कारण मला ह्या कन्सेप्टवरनं तुम्हाला पुढे लीड करायचं आहे आपल्या पुढच्या 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट डिफरन्सेस नावाच्या सब टॉपिककडे. सो हे 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट डिफरन्सेस असतात: ॲब्सोल्यूट डिफरन्सेस, इक्वल डिफरन्सेस आणि कंपॅरेटिव्ह डिफरन्सेस. सांगा मला कोणते 3 असतात? ॲब्सोल्यूट, इक्वल आणि कंपॅरेटिव्ह. सांगा मला कोणते 3? Absolute, equal, and comparative. व्हेरी गुड. हे टाइपचे डिफरन्सेस असतात, कॉस्ट डिफरन्सेस. ओके, सो लेट्स सी अबाउट ॲब्सोल्यूट डिफरन्सेस इन कॉस्ट. समटाइम्स वी फाइंड ॲब्सोल्यूट डिफरन्सेस इन प्रोडक्शन कॉस्ट बिटवीन 2 कंट्रीज. म्हणजे काही वेळा असं होतं की एका कंट्रीकडे कंप्लीट ॲडव्हांटेज असतं. एक कंट्री के पास कंप्लीट एडवांटेज रहता है एक गुड को बनाने का, लाइक वो कंट्री की मोनोपोली हो जाती है. सिंपली सेइंग, अगेन आई एम स्टिकिंग विथ माय आम का एग्जाम्पल, रत्नागिरी देवगढ़ से हापूस is like monopoly, right? So a country may, for example, earn special profits in the production of particular commodity on account of existence of natural monopoly. तो natural monopoly क्रिएट हो जाती है, जैसे कि रत्नागिरी देवगढ़ के हापूस आम की नेचुरल मोनोपोली हुई है, वैसे ही कुछ कंट्री की नेचुरल मोनोपोली क्रिएट हो जाती है. द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस कमोडिटी इज लो. ऑब्वियसली नेचुरल मोनोपोली असल्यामुळे एक वो चीज बनाने की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल मोनोपोली एंजॉयड बाय द कंट्री इन क्वेश्चन. It becomes easier for the country to export the commodity to the other countries. और इसकी वजह से ये कंट्री को, जिसके पास नेचुरल मोनोपोली है और इसकी वजह से एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, तो ये कंट्री वो कमोडिटी को बहुत इजी तरीके से और कंट्रीज को बेच पाएगी. इसका मतलब है क्योंकि हम रत्नागिरी और देवगढ़ में हापूस आम को बेचने की मोनोपोली चलती है, इसकी वजह से हम किसी और रीजन में, किसी और कंट्री में ये हापूस के आम बहुत ही इजी तरीके से बेच सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एन्जॉयड द नॅचरल मोनोपोली ऑफ जूट प्रायर टू 1947. 1947च्या आधी इंडियाने ताग मतलब जूट बेचने की इंडिया के पास नेचुरल मोनोपोली थी 1947 के पहले. एंड एज सच इट यूज्ड टू एक्सपोर्ट जूट टू ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. और ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड में इंडिया से जूट एक्सपोर्ट किया जाता था. Likewise, some other countries of the world also enjoy natural monopoly in the production of certain commodities. Under these circumstances, they developed absolute differences in production cost in different countries. This can be illustrated with the given example. ओके, सो अशा वेळी जेव्हा ऍब्सोल्यूट कॉस्ट ऍडव्हान्टेज असतं तेव्हा तर आपल्याला विचार करायची गरजच पडत नाही, काहीही कम्पेअर करायची गरज पडत नाही. ज्याबद्दल आपल्याला ऍब्सोल्यूट कॉस्ट ऍडव्हान्टेज आहे, वी कॅन ऑप्ट फॉर दॅट कमोडिटी ओनली टू एक्सपोर्ट, इंटरनॅशनल ट्रेड कॅरी करण्यासाठी. सो लेट्स सी द एक्झाम्पल. या एक्झाम्पल मध्ये 2 कंट्रीज आहेत, इंडिया आणि इजिप्त. म्हणजे आपलं 2x2चं मॉडेल फुलफिल होत आहे का बघा. आणि त्या 2 कमोडिटीज आहेत, दॅट इज कॉटन आणि जूट. ओके, कापूस आणि ताग. तुमच्या लक्षात येत आहे? म्हणजे आता जे आपण एक्झाम्पल बघणार आहोत त्यातल्या 2 कंट्री कोणत्या म्हटलं मी? करेक्ट. आणि कोणते 2 कमोडिटीज म्हटलं मी? Jute. Jute and cotton. Correct, cotton and jute. So India can produce 1 unit of labor either 2 units of jute or 1 unit of cotton. So जेव्हा 1 युनिट लेबरचं वापरलं, ओके, नीट लक्षात द्या, थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड आहे, मी तुम्हाला 3ही भाषांमध्ये सांगतेय, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो एका युनिटचं लेबर, एका युनिटचं वर्क फोर्स वापरून इंडिया आयदर वे 2 युनिट्स ऑफ जूट, म्हणजे असं विचार करा 2 तागाची युनिट्स, किंवा 1 युनिट ऑफ कॉटन म्हणजे कॉटनचं 1 युनिट किंवा 1 वस्तू बनवू शकते. भारत आयदर वे एका लेबर कडून किंवा एका लेबरर कडून 2 तागाची युनिट्स किंवा 1 कॉटनची युनिट बनवू शकतं. इंडिया 1 लेबर के काम से 1 लेबर का इस्तेमाल करते, 1 यूनिट ऑफ लेबर का इस्तेमाल कर कर आइदर 2 यूनिट्स ऑफ जूट बना सकता है, जूट के 2 यूनिट्स, या फिर 1 यूनिट ऑफ कॉटन बना सकता है.
whereas Egypt can produce 1 unit of labor with 1 unit of labor, either 1 unit of jute or 2 units of cotton. तो इजिप्ट एकदम से अपोजिट है हमारे हिसाब से. तो 1 यूनिट के लेबर में आइदर वे जूट का 1 यूनिट बनाएगा या फिर कॉटन के 2 यूनिट बनाएगा. इंडिया में हम क्या कर रहे थे, 1 यूनिट लेबर से 2 जूट के यूनिट या फिर 1 कॉटन का यूनिट बना रहे थे. इजिप्ट में यही उल्टा हो रहा है, 1 लेबर फोर्स के यूनिट से आइदर है वे हम 1 यूनिट का जूट या फिर 2 यूनिट के कॉटन के बना रहे. ओके, it is evident from the above example that India enjoys natural advantage in the production of jute, while Egypt enjoys natural advantage in the production of that commodity in which they enjoys natural advantage. म्हणजे मला सांगा की इजिप्त कुठल्या प्रकारची नॅचरल मोनोपॉली किंवा नॅचरल ऍडव्हान्टेज काय बनवण्यात एन्जॉय करतंय, जूट की कॉटन? कॉटन. करेक्ट. वेराज इंडिया कौन सा वाला नेचुरल एडवांटेज देख रहा है, किस यूनिट के बारे में? जूट. जूट. करेक्ट. इन अदर वर्ड्स, इंडिया विल स्पेशलाइज इन जूट वेराज इजिप्ट इन कॉटन. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे हे तुम्हीच मला सांगितलं. सो इंडिया को स्पेशलाइजेशन किस में मिलेगा? जूट में, और इजिप्ट को कॉटन में. बोथ द कंट्रीज विल एंटर इनटू इंटरनेशनल ट्रेड. इंडिया विल एक्सपोर्ट जूट टू इजिप्ट and Egypt will export its cotton to India. So India हमारे पास जो जूट बनेगा वो इजिप्ट को बेचेगा, और इजिप्ट उसके पास जो कॉटन बनेगा वो इंडिया को बेचेगा. This exchange rate between jute and cotton will be fixed on the basis of labor cost. मी तुम्हाला सांगते लेबर कॉस्टचं काय आहे, पण मला सांगा आधी तुम्हाला हे लक्षात आलं का आपण जे बघितलं ते, की इंडिया अशा प्रकारे येस इंटरनॅशनल ट्रेड कॅरी आउट होईल. जेव्हा एखाद्या देशात ऍब्सोल्यूट ऍडव्हान्टेज असेल तर ज्या कमोडिटीमुळे ऍब्सोल्यूट ऍडव्हान्टेज होतोय तीच कमोडिटी एक्सपोर्ट केली जाईल, असं या थिअरीचं ऍब्सोल्यूट कॉस्ट ऍडव्हान्टेज बद्दल म्हणणं आहे, ऍब्सोल्यूट डिफरन्स बद्दल. आता याच्या किमती ठरवायच्या झाल्या, कारण आपण लेबर कॉस्ट मध्ये या किमती बघतोय, तर इंडियाच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू मधनं बघा, 1 युनिट ऑफ कॉटन इन इंडिया म्हणजे आपण जेव्हा 1 युनिट कॉटन बनवतोय भारतात तेव्हा त्याची किंमत 2 युनिट ऑफ जूट अशी आहे. बरोबर आहे की नाही? कारण आपण बघितलं आयदर वे इंडियात 2 युनिट ऑफ जूट बनवू शकतं किंवा 1 युनिट ऑफ कॉटन. इथपर्यंत नक्की लक्षात येतंय? बघा बरं पहिलीच लाईन जे शेअर केली. येस. सो तसंच जर समजा कॉटन बनवायचं ठरवलं तर एका युनिटचं कॉटन जेव्हा इजिप्तमध्ये बनेल तेव्हा असा विचार करा की आपल्याला ही जी वरची लाईन दाखवली आहे, जस्ट अ मिनिट, आय जस्ट अनोट इट. ही लाईन जी आता मी अंडरलाईन करते त्यात काय म्हटलंय की इजिप्त आयदर वे 1 युनिट जूटचं प्रोड्यूस करेल किंवा 2 युनिट कॉटनचं. तो इजिप्त 1 युनिट जूट का प्रोड्यूस करेगा या फिर 2 युनिट कॉटन के. मतलब अगर ये 2 और ये एक दूसरे को हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं, मतलब आइदर वे 2 यूनिट्स ऑफ कॉटन और होगा तो उसको 2 से डिवाइड करके आप देख सकते हो या फिर उसका हाफ बनाकर देख सकते हो कि 1 यूनिट ऑफ जूट. मतलब जितना कॉटन प्रोड्यूस होगा उससे हाफ जूट प्रोड्यूस होगा इजिप्ट में. तो सिंपली यही बोला है कि जैसा 1 यूनिट ऑफ कॉटन हमने अगर इंडिया में प्रोड्यूस किया तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 यूनिट का कॉटन प्रोड्यूस किया तो उसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके हमें जूट मिलता है. मतलब हमारे पास डबल एडवांटेज है. वैसे ही इजिप्ट के पास जो एडवांटेज है उसमें क्या है कि अगर जो कॉटन प्रोड्यूस करता है उससे हाफ वो जूट का प्रोडक्शन कर सकता है. तो हमने अगर 1 यूनिट का कॉटन इजिप्ट ने प्रोड्यूस किया तो 1 का हाफ होता है हाफ, इसका मतलब हाफ यूनिट ऑफ जूट. तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि कॉटन और जूट के हिसाब से इंडिया के पास जूट के लिए एडवांटेज है क्योंकि हम 1 यूनिट के कॉटन में 2 यूनिट्स निकाल पा रहे हैं जूट के, और इजिप्ट में कॉटन का एडवांटेज है एब्सोल्यूट एडवांटेज क्योंकि 1 यूनिट कॉटन का जब बन रहा है तब सिर्फ उनका हाफ यूनिट जूट का बन रहा है. तो इंडिया के पास जूट का एडवांटेज है और इजिप्ट के पास कॉटन का एडवांटेज. समझ में आ रहा है? Yes.
ओके, सो यस, मेरे ये चित्र मिटा देते हैं और आगे चलते हैं. The international trade between India and Egypt will continue so long as Egypt is able to give more than 1 unit of cotton in exchange for 2 units of jute. तो ये ट्रेड तब तक चलता रहेगा जब तक इजिप्ट मतलब 1 यूनिट से ज्यादा कॉटन एक्सचेंज कर पाएगा 2 यूनिट्स ऑफ जूट से. मतलब 1 यूनिट से ज्यादा जब तक कॉटन हमें एक्सपोर्ट होता रहेगा इजिप्ट से, सो दैट हम खरीदे अगेंस्ट 2 यूनिट्स ऑफ जूट, तब तक ये ट्रेड चलता रहेगा. इफ इंडिया इज एबल टू गेट ओनली 1 यूनिट ऑफ कॉटन फ्रॉम इजिप्ट in exchange of 2 units of jute, there is no international trade that will take place between two countries. कारण ऑलरेडी भारतातच आपण बनवतोय 1 युनिट ऑफ कॉटन किंवा 2 युनिट ऑफ जूट. सो जोपर्यंत एका युनिटच्या कॉटन पेक्षा जास्त कॉटन आपल्याला अगेन्स्ट 2 युनिट ऑफ जूट मिळत नाही इजिप्त कडून, म्हणजे एकापेक्षा जास्त जोपर्यंत कॉटनचे युनिट मिळत नाही अगेन्स्ट 2 युनिट्स ऑफ जूट, तब तक हमारा ट्रेड नहीं होगा. हमें 1 से ज्यादा यूनिट्स लगेंगे कॉटन के टू कैरी आउट द ट्रेड in between India and Egypt. Okay, the reason is that 1 unit of cotton is available against 2 units of jute in India itself. तो इंडिया में हमें विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड 1 यूनिट ऑफ कॉटन मिल रहा है अगेंस्ट 2 यूनिट्स ऑफ जूट. Hence, India will insist upon getting more than 1 unit of cotton from Egypt in exchange for 2 units of jute. So, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड से कुछ फायदा तो होना चाहिए, और इसकी वजह से हम क्या मांग करेंगे एज इंडियन कि हमें 1 यूनिट से ज्यादा कॉटन मिलना चाहिए, तो ही हम इजिप्ट से ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1 यूनिट के अगेंस्ट 2 यूनिट जूट मिल रहा है. ओके, सो दैट इज अ काइंड ऑफ लॉजिकल थिंग. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज सी दिस वीडियो, और अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है यू कैन आस्क मी. ओके, likewise the trade between India and Egypt will be profitable so long as Egypt is able to get more than half unit of jute from India in exchange for 1 unit of cotton. मग आजचं हे टेबल बघा. ओके, सो या टेबल मध्ये बघा काय म्हटलंय की 1 युनिट ऑफ कॉटन जेव्हा इजिप्त तयार करतोय तेव्हा त्याच्या अगेन्स्ट त्यांना हाफ युनिट ऑफ जूट त्यांच्याच कंट्रीमध्ये मिळतंय. मग इंटरनेशनल ट्रेड को कैरी करने के लिए हमें इंडिया से इजिप्ट में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा हाफ यूनिट से ज्यादा जूट अगेंस्ट 1 यूनिट ऑफ कॉटन, सो दैट ये इंटरनेशनल ट्रेड कैरी होता रहेगा. ओके, if Egypt gets only half unit of jute from India in exchange for 1 unit of cotton, then the international trade between two countries will come to an end. The reason is that half unit of jute is available in exchange for 1 unit of cotton in Egypt itself. तो already उनके ही country में इनको half jute मिल रहा है 1 unit के against cotton के, तो इनको कुछ जरूरी ही नहीं होगा इंटरनेशनल ट्रेड का. अगर हम हाफ यूनिट से ज्यादा जूट प्रोवाइड कर सकते हैं तो ही ये ट्रेड कैरी आउट होगा अगेंस्ट 1 यूनिट ऑफ कॉटन. Hence, Egypt will insist upon getting more than half units of jute from India in exchange for 1 unit of cotton. We have assumed in the above example that there are no transport and insurance costs in international trade. तो ये सारे चीजों में ट्रांसपोर्ट या इंश्योरेंस की कॉस्ट कभी भी अज्यूम किए नहीं जाते. वैसे कॉस्ट नहीं है ऐसा अज्यूम किया जाता है, लेकिन ऑब्वियसली इन रियलिटी दे आर देयर. बट इवन इफ द कॉस्ट दीज कॉस्ट आर एडेड टू प्रोडक्शन कॉस्ट, द सिचुएशन डज नॉट चेंज in any material sense because the addition of these costs will have equal effects on these two countries. So जरी या एक्स्ट्रा कॉस्ट आपण ऍड केल्या लेबर कॉस्ट मध्ये, तरी सुद्धा थियरी मध्ये फारसा फर्क पड़ना नहीं, बहुत चेंज नहीं होगा थियरी में, क्योंकि ये दोनों कंट्री में सेम इफेक्ट होगा ना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट का. तो मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट पे दोनों कंट्री में सेम इम्पैक्ट होगा और उसकी वजह से हम एडिशनल कॉस्ट भी दिखा सकते हैं. Thus, if there are absolute differences in production costs between the two countries, international trade will inevitably take place between them. तो अगर दो कंट्रीज में एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस दिख रहा है, एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस है, तो वो दो कंट्रीज में डेफिनेटली इंटरनेशनल ट्रेड काम करेगा. ओके, दिस ट्रेड विल बी
to the mutual advantage of two countries. तो ये ट्रेड से क्या होगा, जो एब्सोल्यूट एडवांटेज के हिसाब से, एब्सोल्यूट डिफरेंस की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से दोनों कंट्रीज को म्यूचुअल एडवांटेज मिलेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा दोनों कंट्रीज को फायदा होगा. ओके, then we are moving to the equal differences in cost. I really know that I'm moving and giving you a lot to consider, but let's think that I'll first give you attendance sheet, and then we can talk about it. Okay, let's take a break for 1 minute. ओके, सो मी तुम्हाला अटेंडन्स शीट दिली आहे ऑलरेडी. तुम्हाला मिळाली का? Yes. व्हेरी गुड. सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स. जोपर्यंत तुम्ही अटेंडन्स लावताय तोपर्यंत कुठचे चांगले पिक्चर बघितले त्या 2-4 दिवसात? बरं 2-4 दिवसात सोडून द्या, सुट्टी होती तुम्हाला एक्झाम नंतर, तेव्हा कुठचे पिक्चर बघितले? रिअली तुम्ही इतके प्रायव्हेट पर्सन आहात की तुम्ही मला सांगू शकत नाही तुम्हाला कुठचा पिक्चर आवडला ते? आय एम जस्ट लुकिंग फॉर अ गुड प्लेलिस्ट फॉर माय सेल्फ. I saw Bandish Bandits. It's a nice one thing. Yes. Oh, Interception. I didn't watch that. Nice to add to my own playlist. But I have seen Inception and it's really nice. ड्रीम मध्ये लिओनार्डो डिकॅप्रियो नावाचा खूप मोठा ऍक्टर, खूप भारी ऍक्टर आहे त्यात. हो, जोकर आणि एर्टुग्रुल घाझी. ओके, मी हा नाही बघितला नक्की इफत. आणि या टेनेट. सो व्हॉट इज टेनेट? काय येतो मला सांग बरं त्या पिक्चर बद्दल जरा, काही मी ऐकलं नाहीये. आणि चॅटवर सांगू नका, तुम्ही तुमचे माईक ओपन करू शकता, चॅटवर कसले सांगताय मला? Legacies, like series, Legacies. I really love that series. हा. व्हेरी गुड. खूपच भारी सिरीज आहे राईट ही. आणि वाव, इट्स अमेझिंग. ऑल द सुपर नॅचरल थिंग्स राईट. सो तुमच्यापैकी कुणी वॅम्पायर डायरीज पाहिलंय का, किंवा असं काही पाहिलंय का? इव्हन नॉर्मल सुद्धा, हिंदी सुद्धा खूप भारी भारी आल्यात राईट वेब सिरीज. इव्हन ज्यांना मराठी वेब सिरीज मध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांच्यासाठी पण खूप चांगल्या वेब सिरीज आल्यात सध्या. अभ्यासाचा वेळ न खर्च करता वेब सिरीज बघणं अपेक्षित असतं बरं का. लेट मी अंडरलाईन दॅट फॅक्ट. पण तुम्ही खरंच कोणी बाकी काही बघितलं नाहीये का? तुम्ही फक्त इंस्टाग्राम आणि फेसबुकच बघता? Oh, cool. Scam 1999. That's amazing again. One of the very amazing thing, right? It's amazing. Believe me. कशी वाटली मग बघताना? नेहा, कसं वाटलं स्कॅम बघताना? येस, तुम्हाला चॅट करायला खूप जास्त आवडतं. 107 पण बघितले. कुठली? 107 अशी आहे. 107. ओ, ओके ओके ओके. आणि ते मँगा म्हणजे ते इफत ते कॉमिक स्ट्रीप असते तीच राईट? अॅनिमी कॉमिक स्ट्रीप असते ती. इज दॅट सेम? अमेझिंग राईट. मी आता अॅनिमीकडे वळायचा असा विचार करते. सो दॅट वुड बी गुड थिंग राईट. मला येस, केतकी समांतर स्वप्नील जोशीची राईट. चांगली आहे का ती? MX प्लेअर वर दिसत होती. Cool. I'm trying. Ma'am, are you going to watch anime? Which one? I couldn't hear you. Are you going to watch anime?
Anime, yeah, I'm thinking about starting it because one of my really small cousin, she was watching it and I was thinking, oh my god, I even haven't watched that, so I should start it. Actually, you should start with Death Note or Attack on Titan. Okay, sure. Thanks for suggestion. I will definitely do that. Really, thanks for that. Yeah, present sheet nahi mili aapko. Let me send it again. One Piece. I haven't heard about it. Sajid, explain karoge kya No, hai ye? you shouldn't watch One Piece. It has 1,000 episodes. Oh my god. Oh my god, really? That's. But must be interesting, right? अगर 1000 episode है तर. Yes, it's the top tier anime. That's amazing. ओके, सो आपण ही चर्चा उद्याही करू शकतो. डेफिनेटली आपण त्याच्यासाठी 5 मिनिटं बाजूला ठेवूया. तोपर्यंत तुम्ही तुमची बॅटलशिप मूव्ही, ओ येस, बॅटलशिप बद्दल डेफिनेटली मी बघितली ती. म्हणजे खूप आधी बघितली, पण या मी बघितली ती. सो आपण हेच डिस्कशन उद्या इथून कॅरी करूया. एक पॅरेग्राफ इक्वल डिफरन्सेस बदला आणि आपण थांबूया, कारण मीटिंगच कट होणार आहे. ओके, उद्या डेफिनेटली मला आठवण करा. काही चांगल्या सिरीज घेऊन या, आपण त्याच्यावर रिव्ह्यू करूया. यु नो, दॅट कॅन बी अ गुड पॉडकास्ट, की एक सिरीज कशी आहे, तुम्हाला कसं वाटलं त्याच्यावर. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दॅट. उद्याची सिरीज तुम्ही ठरवायची आणि मला सांगायची सिरीज किंवा मूवी, आणि आपण त्याच्यावर बोलूया. ओके, सो इक्वल डिफरन्सेस इन कॉस्ट काय असतात? इंटरनॅशनल ट्रेड कॅन बी प्रॉफिटेबल ओनली वेन देर आर कंपॅरेटिव्ह डिफरन्सेस बिटवीन टू कंट्रीज. सो इंटरनॅशनल ट्रेड तेव्हाच होऊ शकतो जेव्हा दोन कंट्री मधल्या लेबर कॉस्टमध्ये काहीतरी फरक असणार. ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ देर आर इक्वल डिफरन्सेस इन प्रोडक्शन कॉस्ट, इंटरनॅशनल ट्रेड कॅनॉट टेक प्लेस. सो जर इक्वल डिफरन्सेस असतील, मग अशी म्हटलं तसं की 1 युनिटचं लेबर जेव्हा 2 युनिट्स ऑफ ज्यूट आणि 2 युनिट्स कॉटन बनवेल, किंवा इजिप्तमध्ये जेव्हा 1 युनिटचं लेबर 1 युनिट ज्यूट किंवा 1 युनिटचं कॉटन बनवेल, सो ते काहीही चूज करू शकतात, आयदर वे ज्यूट और कॉटन. कुठलाच ऍडव्हान्टेज नाहीये. आणि तसं असेल तर दोन कंट्रीज मध्ये ट्रेड होणारच नहीं. देर विल बी नो ट्रेड, क्योंकि दोनों की कॉस्ट है ना वो सेम ही होगी. हेंस इंटरनेशनल ट्रेड ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड. जैसे कि ये एग्जाम्पल में मैंने बताया. इन द अबव एग्जाम्पल देर आर इक्वल डिफरेंसेस इन द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द टू कंट्रीज. सो इंडिया को एक ही यूनिट का लेबर कॉस्ट देना पड़ रहा है जब 2 यूनिट जूट या फिर 2 यूनिट कॉटन बन रहा है. इजिप्ट को सेम ही 1 यूनिट का कॉस्ट, लेबर कॉस्ट बन रहा है जब 1 यूनिट का जूट और 1 यूनिट का कॉटन बन रहा है. तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, तो ट्रेड होगा ही नहीं. इंडिया कैन प्रोड्यूस बोथ जूट एंड कॉटन एट अ लेसर कॉस्ट देन इजिप्ट. If there were no international trade, then the exchange ratio between jute and cotton in India would be 1:1, and this exchange ratio would also be applicable to Egypt. So सगळीकडे same ratio आहे, exchange ratio, so there will be no trade. Now, if India produces jute only and imports cotton from Egypt, it earns no profit. तो अगर इंडिया सिर्फ जूट बनाता है और कॉटन इंपोर्ट करता है इजिप्ट से, तो इंडिया का कुछ फायदा होने वाला नहीं है. ओके, बिकॉज द एक्सचेंज रेशो बिटवीन कॉटन एंड जूट इन इजिप्ट इज सेम एज इन इंडिया. तो दोनों कंट्रीज में फिर भी अलग अलग चीजें बन रही है. इनका जो एक्सचेंज रेशो है, इंडिया में 2:2 है, दैट इज 1:1, राइट. 2 यूनिट्स ऑफ जूट, 2 यूनिट्स ऑफ कॉटन, मतलब 1:1. और ऑलरेडी इजिप्ट में भी 1:1 ही है. तो इसका मतलब इंडिया को कुछ भी फायदा नहीं होगा. इन अदर वर्ड्स, इंडिया कैनॉट गेट फ्रॉम इजिप्ट more than 1 unit of cotton against 1 unit of jute. But 1 unit of cotton is already available in exchange for 1 unit of jute in India. म्हणजे जेवढं भारतात प्रिपेअर होतं आणि जेवढी कॉस्ट लागते तितकीच इजिप्तकडून आणण्यात पण लागेल. दस अंडर दिस कदाचित जास्तच लागेल, क्योंकि इंपोर्ट में टैक्सेस हो जाएंगे, फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगा. तो शायद लॉस हो सकता है, फायदा बिल्कुल नहीं होगा. Thus, under these circumstances, India's trade with Egypt will actually prove harmful, because if India imports cotton from Egypt, it will have to bear transport and insurance charges as well. तो ये सब होने के कारण इक्वल डिफरेंस ऑफ कॉस्ट इज नॉट अ गुड टर्म, एंड इस टाइम पे बिल्कुल भी फायदा होने वाला नहीं है. इंटरनेशनल ट्रेड रुक जाएगा. Thus, there is no gain from international trade if there are equal differences in the production cost between the two countries. और आज हम यहाँ पर ही रुक जाते हैं. कल I guess we should talk about one good series or one good movie and comparative differences in cost. Okay? तो फिलहाल के लिए bye. Have a nice day ahead and we'll see you soon. I mean tomorrow only.
with the same time. Okay, bye, have a nice day ahead.